السلام علیکم ناظرین. احساس فاؤنڈیشن اور ویوا یعنی ویژن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن، ان دونوں تنظیموں کے اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ مقابلوں کا جلسہ شاندار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. دوسرے روز شام 4 بجے کامیاب طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے. تقسیم انعامات کی اس نشست میں انجمن اسلام ہبلی کے صدر ایم ہندسگیری بطور مہمان خصوصی حاضر رہے. ہوڈا کے چیئرمین شاکر سندی، یمیو شرہٹی، محمد سلیم منچن کو بحیثیت اعزازی مہمان جلسے میں شریک تھے. ڈاکٹر عبدالکریم نے صدارت کے فرائض کو انجام دیا. قبل ازیں طالبہ مسکان بانو کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہوا. ہبلی احساس فاؤنڈیشن کے صدر نے تمام کا خیر مقدم کیا. امتیاز شیخ، سراج احمد منیار، وکیل علی لاڈ خان، پروفیسر جاوید خطیب، سرفراز پٹھان اور صادق مٹے بھائی نے تمام مہمانوں کی خدمت میں گلہائے عقیدت و نذرانہ محبت پیش کیے. بعد ازاں اشفاق خطیب نے یوم دستور ہند کی مناسبت سے حاضرین جلسہ کو آئین ہند کے تئیں عہد کروایا. مہمان خصوصی ایم ہندسگیری نے دونوں تنظیموں اور کارکنان کو اس کامیاب جلسے کی مبارکباد پیش کی. ساتھ ہی ان تمام طلباء کو جنہوں نے اس سائنسی نمائش، تقریری و تحریری مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور سائنس کا دور ہے. آج سائنس کی ایجادات ہماری زندگی میں تمام شعبوں کا جز بن گئی ہیں. اسی طرح شاکر سندی نے بھی تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ تیقن دلایا کہ اگر مستقبل قریب میں ایسے پروگراموں کے لیے جگہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ واجبی داموں میں اس کا انتظام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے بعد دیگر اسکولوں و کالجوں سے آئے بطور ججز کے شامل اساتذہ، شہر کے اردو اسکولوں کے میر معلمین و معلمات کی خدمت میں تہنیت پیش کی گئی. اسی طرح مقابلوں میں کامیاب طلباء کو انعامات و اسناد سے بھی نوازا گیا. لکنڈی سر نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور عبد المنزگی نے شکریہ کی رسم ادا کی. آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات آصف بنکاپور کے ساتھ. اس ایگزیبیشن کا جو منعقد کیا گیا تھا سر، بچوں نے بہترین انداز میں ماڈل بھی پیش کیے سر. اس کے لیے آج ہمارے شہر ہبلی میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ہمارے ایک مشہور و معروف احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہائی اسکول اور دیگر پرائمری اسکولز کے طلباء اور طالبات کے ذریعے سے آج کے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 43 ماڈلز انہوں نے پیش کیے ہیں اور 60 سے بھی زیادہ ادارے یعنی اسکولز اس میں حصہ لیے ہیں. دیکھنے کے بعد بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے نونہال بچے، طلباء اور طالبات اور ان کے اساتذہ کرام یعنی ٹیچرز وغیرہ ان کو اچھا ٹرینڈ کر کے، بتا کر، تجربہ دے کر انہوں نے یہ جو ماڈلز پیش کیے ہیں قابل تعریف ہیں اور قابل مبارکباد ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک میل کا پتھر ہے ہمارے اسکولز کے لیے. ہر سال ایسے ایگزیبیشنز اپنے اپنے اداروں میں کرنا بہت ہی اچھی بات ہوگی اور ان کی ہمت افزائی بھی ہوگی اور عوام کو بھی معلومات ہوں گے کہ بھئی ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا اسٹڈی ہے، کیا کوشش ہے، کیا کر رہے ہیں بول کر. اس لیے میں احساس فاؤنڈیشن کے صدر صاحب اور جتنے بھی معزز ممبران ہیں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پہل کیا ہے، جو آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت دنوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ایگزیبیشن ماضی میں ہوتے تھے لیکن یہ 15-20 سال میں تو میں نے دیکھا تو یہ ہوا ہے. میں یہ بھی بات کہا میرے چھوٹی سی تقریر میں کہ جو قدیم ہمارا کالج ہے، ہائی اسکول ہے، اس سے بڑے لیول پر بھی ایسے ایگزیبیشن کرنا ہمارے شہر میں مناسب ہوگا. جیسا دھارواڑ بھی ہے، ہبلی بھی ہے، یہ بڑے ادارے ہیں. انہوں نے یہ جو آغاز کیا، جو سٹارٹ کیے ہیں، ہمارے لیے ایک میل کا پتھر ہے اور ہمارے لیے ایک نصیحت ہے ایسا میں سمجھتے ہوئے اور ایک مرتبہ صدر محترم اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں اور ممبرس ہیں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خورشید احمد کلیگار جو اس کا ایونٹ چیئرمین ہوں. ہبلی احساس فاؤنڈیشن اور ویژن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے 25 اور 26 کو گورنمنٹ اردو اسکول نمبر 8 کیشاپور ہبلی میں تمام پرائمری
और हाई स्कूल के उर्दू स्कूल के तमाम तलबा के लिए एक साइंसी नुमाइशगाह का जो है एहतमाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हुबली के तकरीबन प्राइमरी और हाई स्कूल के 40 स्कूल से तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का जो है बेहतरीन मुजाहरा भी किया। दोनों तंजीमों का मकसद यही था कि आज हिंदुस्तान और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत ज़्यादा जो है इसकी दौड़ है। साइंस और टेक्नोलॉजी आज वक्त की ज़रूरत है और इसमें मुल्क हिंदुस्तान को तमाम दुनिया आलम में जो है इसे बेहतर बनाने के लिए, इसे नंबर 1 पर लाने के लिए तमाम की कोशिशें ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के अंदर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक़ जो है उनके नज़रियात और उनके ख़यालात जो है साइंसी बने, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये साइंसी नुमाइश का जो है एहतमाम किया। और इसके ज़रिए से हमने देखा कि हमारे उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के अंदर भी साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ इतने मजीद मालूमात हैं कि इतने बेहतरीन जो है मॉडल्स बना करके वो लाए और इतने बेहतरीन अंदाज में उसकी तशरीह की कि देखने वालों के लिए जो है वो काबिल दीद रहे हैं। और इसकी असल वजह भी यही है कि सलाहियतें जो है किसी जबान की मोहताज नहीं हुआ करती और मादरी जुबान के अंदर जितनी जो है सलाहियतों को हम उभार सकते हैं वो दीगर जुबानों के जरिए जो है नामुमकिन है। आज हुबली शहर के मुख्तलिफ मदारिस के अंदर भी तमाम उर्दू असातिज़ा भी अपने तौर पर बेहतरीन अंदाज में जो है उनकी जो है बच्चों को जो है पढ़ाने में जो है उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोशिशें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि असातिज़ा की मेहनत और बच्चों में पाए जाने वाले सलाहियतों को जो है उसे बाहर लाने, उसे लोगों के दरमियान पेश करने का जो है मौका नहीं था। तो हुबली एहसास फाउंडेशन और विजन एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के ने एक सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को जो है उनकी सलाहियतों को जो है परवान चढ़ाने, उनके अंदर अपनी सलाहियतों को पहचानने का जो है एक मौका फराहम हो। इसके लिए हमने जो है स्टेज जो है उनके को जो है फराहम किया। यहाँ पर जितने भी बच्चे हिस्सा लिए हैं और खास करके देखने के लिए जो मेहमान यहाँ पर आए थे, मोहतरम बसराज भट्टी साहब हो, मोहतरम MLA साहब अभय सर हो और इसके अलावा शाकिर संधी हो या इस तरह से जो है इंडस गिरी साहब, तमाम ने जो है देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इसको सराहा है और कहा है कि हम जो है इस तरह का जो नुमाइश जो यहाँ पर साइंस से मॉडल जो पेश किए गए हैं इस तरह का जो है बहुत कम देखने को मिलता है और माशाल्लाह जो है उर्दू स्कूल के तलबा ने जो है बेहतरीन अंदाज से पेश किया। वाकई अगर हम देखेंगे तो ये बात हमारी समझ में आ सकती है कि आज के दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है बेहतरीन सलाहियतों को लेकर के पैदा हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि उसके अंदर उसकी सलाहियतों को पहचान करके उस सलाहियतों को जो उभारने की जो है कोशिश हो, जिस काम के लिए जो है असातिज़ा भी कोशिश कर रहे हैं और ये काम सिर्फ असातिज़ा ही का नहीं बल्कि जो है दीगर माशरे के अफराद का भी फर्ज बनता है कि हमारे कौम के इन बच्चों को जो है आगे बढ़ने के मौके जो है हम जो है फराहम करें। और आज ये जो जितना भी मामला मतलब जो भी फंक्शन जो प्रोग्राम जो मुनक़द हुआ है इसी को मद्देनजर रखते हुए किए हैं और साथ ही साथ बच्चों के अंदर बेहतरीन सलाहियतें तकरीर करने की जो सलाहियतें हैं आज देख करके जो है दिल खुश हो गया, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर हिस्सा लिए थे तकरीरी मुकाबले के अंदर एक से बढ़कर एक जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। और क्योंकि जो इस इंसान के पास बेहतरीन तकरीर करने की सलाहियतें और अपने कलम की ताकत जिसे मालूम हो जाए, जो बेहतरीन लिखना जानता हो, जो बेहतरीन बोलना जानता हो, अपने ख्यालात को पेश करना जानता हो, अपने हुकूक को जो है और अपने माजी को और मुस्तकबिल को भी जो अगर वो पहचान करके उसको बयान करने की उसके अंदर सलाहियत अगर आती है तो वो बच्चे उस कौम के जो है मेमार बन जाते हैं और उनको जो है जिंदगी में कभी किसी चीज का जो है उनको जो है पीछे हटने की या जो है पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं होती। और खास करके उर्दू मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के अंदर ऐसा से कमतरी का जो है मामला ना हो, उसके अंदर जो है ऐसा से कमतरी पैदा ना हो कि दिगर जबान में पढ़ने वाले तलबा जो है ज्यादा हमारे से काबिल होते हैं, हमारे अंदर नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए उनकी सलाहियत को, उनकी काबिलियत को जो उभारने, उनको पहचान करा करके देने के लिए और तमाम अवाम तक जो है उनकी सलाहियतों को जो है दिखाने का जो है ये जो कोशिश की गई है वाकई जो है काबिल तारीफ है। और खास करके हमने आज के दौर के तहत ही जो है उन्वानात को भी जो है चुना था, चाहे वो तहरीरी हो या तकरीरी हो। उसमें खास करके साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीजें आज चल रहे हैं इससे क्या हमें नुकसानात हो रहे हैं और क्या फायदे हो रहे हैं ये बच्चों को मानना जरूरत है। तो इसी पर जो है उनके लिए जो हमने जो है तहरीरी मुकाबले रखे थे।
साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का क्या रोल है। हमें फख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान भी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है, बहुत आगे है और इंशाल्लाह जो है बहुत तरक्की करेगा। तो बच्चों में ये जज्बा भी पैदा हो कि जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने जो है इसकी साइंस और तरक्की के लिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, खुद भी जो है आगे बढ़ करके जो है इसे और आगे जो है ले जाने के लिए खुद भी तैयार हो जाए। तो इसलिए जो है ये तकरीरी मुकाबले भी जो है इसी उन्वान पर हमने रखे हैं। और आज का दौर जो है वो जो है मुकाबलाती जो है दौर है, इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो ये जज्बा पैदा करने के खातिर जो हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन जो प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जो है इख्तिताम पर पहुंचा है। तो मैं इस मौके पर तमाम दोनों जो है एसोसिएशन के जिम्मेदारान का और खास करके असातिज़ा का, हेडमास्टर का और तुलबा का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उन तमाम का जो है मैं यहाँ पर जो है दिल की गहराई से उनका शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट का जिन्होंने इसके लिए सपोर्ट किया, बीओ सर को, और इसके साथ जो खास करके जो मीडिया जो पर्सन आप तमाम हैं, आपने 2 दिन जो है बहुत अच्छा जो है हमारा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है तमाम प्रोग्राम्स को जो है इसको नशर करने की आपने कोशिश की है। तो मैं दोबारा आपको भी जो है दिल की गहराइयों से दोनों ऑर्गेनाइजेशन या दोनों एसोसिएशन की जानिब से आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಐಸಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಉಗಮ ಆಗ್ತವೆ ಆ ತರ ವಿಜನ್ ಉಗಮ ಆಗಿದ್ದು ಆನಂದ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಐಸಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಗಮ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಶಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಜನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೇಲೋತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ವಿಜನ್ ಮತ್ತು ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಚಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಚಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವಂತ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಜನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಐಸಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಜನ್ ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मैं प्रोफेसर जावेद अहमद खतीब एंग्लोद गर्ल्स पीयू कॉलेज में वैसे तो उर्दू लेक्चर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो है प्रोग्राम हो रहे जा रहे हैं. एहसास हुबली एहसास फाउंडेशन और विजन एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये 2 रोजा प्रोग्राम काफी कामयाब रहा. कल ही इस प्रोग्राम के तकरीबन जो है 34 प्राइमरी स्कूल और 11 हाई स्कूल के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया. पहला दिन जो है साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया था. तलबा और तालिबात ने जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने अपने तजुर्बा को पेश किया गया. उसके बाद उसी दौरान जो है प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल लेवल में तमाम तलबा और तालिबात के तहरीरी और तकरीर मुकाबलों का इनेकाद भी हुआ, जिसमें 11 हाई स्कूल और 34 प्राइमरी स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था. बहरहाल जो है ये प्रोग्राम काफी कामयाब रहा. मैं रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस से
के गुरानी हूँ। मैंने यहाँ आकर बच्चों की सलाहियतों के बारे में देखा। ये कितने दिनों के बाद में एक बड़ा अच्छी तरह से एक एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जहाँ पर हुबली सिटी के तमाम स्कूलों के अपने अपने मॉडल्स, अपने साइंस के मॉडल्स रखे गए थे। बड़ी खुशी हुई देख करके बच्चों ने इतनी मेहनत अपने असातिज़ा की कोशिश से तैयार किया है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अभी ज़्यादा मैंने नहीं देखा पूरा एग्जीबिशन। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना के रखे गए हैं यहाँ पर। सारे बच्चों के लिए ये बड़े फ़ायदेमंद है। मुझे इसमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने अपने असातिज़ा की मदद से इतना अच्छे अच्छे मॉडल बना के पेश किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर हुबली में हुबली एहसास फाउंडेशन और विजन एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के मुश्तरका तौर पर यहाँ पर खास करके हुबली शहर के तमाम प्राइमरी और हाई स्कूल उर्दू मीडियम के स्कूल्स के लिए बच्चों के जो भी सलाहियत हैं उनको उभारने के लिए, साइंसी रुझान को बढ़ाने के लिए, साइंसी फिक्र को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों के साइंसी एग्जीबिशन भी रखा गया और साथ साथ बच्चों में साइंस की टेक्नोलॉजी के मुताल्लिक मालूमात को अजबर करने के लिए, बाद फिर उनके अंदर साइंसी रुझान पैदा करने के लिए ऐसे रेटिंग मजमून वैसे का मुकाबला भी रखा गया। यहाँ तक कि तकरीर मुकाबला भी रखा गया जिसमें खास करके साइंस के उन्वानात पर ही यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेट के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और फायदे और नुकसान मुतल्लिक से यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है और साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का रोल। इस तरह से बच्चों में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि साइंस की जो अहमियत है, खास करके इसकी बहुत ज़रूरत है और हमारे कौम और मिलत के बच्चे जो आगे मुस्तकबिल में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंसदान बनकर उभरे, ये सोच रखते हुए विजन फाउंडेशन और हुबली एहसास फाउंडेशन जानिब से ये मुकाबले यहाँ पर मुनक़्क़द किए गए हैं। हम जितनी भी तारीफ करें हुबली एहसास फाउंडेशन की और विजन एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन की, बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कोशिश रही है इनकी कि उर्दू मीडियम के बच्चों में एक साइंसी रुझान पैदा करें और बच्चों की तरक्की के लिए उनको आमादा करें, उनको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तहरीरी मुकाबला है जिसमें गलबन 24 बच्चों ने हिस्सा लिया है और उन्वानात दिए गए हैं अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा। गलबन इतनी छोटी सी उम्र में, गलबन 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बच्चे हैं, इतने बेहतरीन अंदाज में बात कर रहे हैं कि हैरानी होती है कि अबुल कलाम आजाद की शख्सियत जो है अदबी और सियासी जिंदगी पर इतना बेहतर तरीके से उन्होंने बात रखी है कि शायद कोई बड़ा भी ना रख सके। और अबुल कलाम आजाद की शख्सियत पर या हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का जो रोल रहा है उसको बड़ी खूबी के साथ, हालांकि उनको 5 मिनट का वक्फा दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है। हमको ऐसे लगता है कि 3 प्राइजेस तो रखे हैं इन्होंने, लेकिन बच्चों की वो बोलने की जो सलाहियत है, उनका जो हुनर है, पेशकश करने का जो अंदाज है, उसको देखकर लगता है कि सबको प्राइजेस मिलने चाहिए। तो ये बहुत बेहतर तरीक़ेकार है बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर लाने का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक बहुत बड़ी पहल या पेशकश कहें जो इस इदारे ने की है, ये कोशिश कि इतने सारे स्कूल के बच्चों को, वो भी उर्दू मीडियम के स्कूल के बच्चों को मंजर आम पर लाना, ये कोई आम बात नहीं है और मैं कहती हूँ कि कोशिश बड़ी ही कामयाब रही और मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद देती हूँ। This was a wonderful platform for the Urdu medium students. It's a great mixture of Urdu language and scientific thought process. So I urge the student not to hesitate to raise questions, because the very idea of scientific temperament is to ask questions, to create new things, to discover, because most of the students, they are afraid of the failure. So that is what the message I want to convey. Once the great scientists, thinkers, philosophers, before their significant discovery, they failed. They come up with various ways to overcome. So that is what my message is for the students. Never hesitate
and don't get afraid of failure, because every failure provides you an opportunity to get a new chance. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಅವಕಾಶ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।